یہ بات بتائے گا اس وقت تازہ ترین کیا صورتحال ہے وہاں پر، اور پولیس کی ٹیمیں کیا سڑکوں کو کلیئر کروا رہی ہیں؟ دیکھیں اس وقت بھی یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں وہ ایک بار پھر یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کبوتر چورنگی کی طرف تھوڑی سی پیش قدمی ان کی جانب سے کی گئی ہے اور پولیس کو پیچھے دھکیلا گیا ہے، اور یہ دیکھنے میں بھی آ رہا ہے کہ پولیس کی جانب سے اس پوری جگہ کو کلیئر کرا لیا گیا تھا، لیکن جماعت اسلامی کے جو کارکنان ہیں ایک بار پھر وہ جمع ہو کر اس جانب جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، اور جو ہے وہ پولیس کو ایک جو ہے وہ ریزسٹنس کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جماعت اسلامی کے کارکنان پھر وہ منظم ہو کر سندھ اسمبلی کی جانب جو ہے وہ مارچ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور پولیس کی بھاری نفری کیونکہ اس علاقے کو چاروں طرف سے کارڈن تو کر چکی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کارڈن کو جو ہے وہ توڑ کر پولیس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا کہ یہ تیسری بار اس طرح سے ہوا ہے کہ احتجاج کے دوران جو جماعت اسلامی کے کارکنان تھے ان کو جب پیچھے دھکیلا گیا تو وہ واپس کبوتر چورنگی کی طرف جو ہے وہ اپنی پیش قدمی جو ہے انہوں نے بڑھائی ہے، ریزسٹنس کیا ہے، پتھراؤ کیا ہے، اور پولیس کو مجبور کیا ہے کہ وہ ایک پیچھے کی جانب جو ہے وہ چلے جائیں۔ اور اس وقت بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کبوتر چورنگی سے منسلک جو آگے جو سڑک ہے جو اہل حدیث سے مسجد ہے اس کی جانب جو ہے وہاں پر موجود جماعت اسلامی کے کارکنان بھی ہیں اور پولیس بھی ہیں، جس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، پتھراؤ، شیلنگ، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کی جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی پتھراؤ جو ہے وہ پولیس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ پولیس کے اوپر ابھی بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بات جیسے کہ شعیب نے ہمیں بتایا کہ 8 فروری کے بعد یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے، تو یہ اگر پہلے سے ہی پلان تھا تو پھر اس کے باوجود معاملات یہاں تک کیسے پہنچے، اتنے معاملات خراب کیوں ہوئے؟ دیکھیں احتجاج وقتاً فوقتاً جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی میں جو احتجاج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بد انتظامی کی باعث جو ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں، جس میں گل پلازہ ہے، جس میں یہ دیکھا جا رہا تھا کہ آئے روز گٹر میں جو ہے وہ بچے گر کر جاں بحق ہو جاتے ہیں، اس طرح کی بد انتظامی کے باعث جماعت اسلامی کے کئی احتجاج ہوئے ہیں، لیکن سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کی جو ہے وہ اس وقت کال نہیں دی گئی تھی۔ یہ اب جب گل پلازہ کے بعد یہ دیکھا گیا کہ بد انتظامی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ کے ایم سی کے جو لوگ تھے، جو ورکرز تھے، کے ایم سی کے جو ملازمین تھے، وہ جب لوگوں کے اندر موجود ہونے کا ان کو جب پتا تھا کہ اندر لوگ موجود ہیں تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کے پاس نہ ہی کوئی اسٹریٹجی دکھائی دی گئی تھی، نہ ہی آلات موجود تھے، جس کے باعث سے یہ دیکھا گیا کہ احتجاج جماعت اسلامی کی طرف سے 8 فروری کے بعد جو ہے وہ اعلان کیا گیا اب سندھ اسمبلی کے باہر اس احتجاج کو جو ہے وہ منتقل کیا جائے گا، اور اس کا اعلان جو ہے وہ قبل ہی کر دیا گیا تھا، اور دھرنے کا بھی بتا دیا گیا تھا کہ دھرنا دیا جائے گا جو جب تک مطالبات تسلیم میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھا گیا کہ آج جب جماعت اسلامی کے کارکنان اس جانب پر بڑھے ہیں تو پولیس کو یہاں پر بڑی تعداد میں تعینات کر رکھا تھا، اور ان کو سندھ اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جس کے باعث یہ جو صورتحال ہے وہ کافی گمبھیر ہوئی۔ پولیس کی جانب سے جو آنسو گیس کی شیلنگ ہے وہ کی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، کارکنان کو گرفتار کیا گیا، جس کے باعث یہ دیکھا گیا کہ کارکنان کی بڑی تعداد اس وقت مشتعل ہوئی، اور اس وقت بھی پولیس اور کارکنان کی جانب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ پتھراؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بات یہ بھی بتائے گا کہ جماعت اسلامی کے وفد میں کون شامل ہے، اور پولیس کے درمیان مذاکرات ناکام ہو چکے ہیں تو اس کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ اس بات سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے ناظرین کو بتائیں کہ کراچی میں سندھ اسمبلی جانے کی کوشش کرنے والے جماعت اسلامی کے کارکنوں پر پولیس کی شیلنگ کی گئی ہے، مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ بھی کیا ہے۔ اب ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف سندھ شعیب برنی نے۔ شعیب بتائے گا جیسے کہ میں نے بات سے بھی پوچھا کہ جماعت اسلامی کے وفد میں کون شامل ہے، کون لیڈ کر رہا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان کا ایکس پر بیان بھی جاری کیا گیا ہے، کیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے؟ بالکل، حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ اپنا بیان جاری کر دیا گیا ہے۔ بیان کے ساتھ انہوں نے وہ ویڈیوز بھی شیئر کری ہیں اپنے ایکس کے بیان میں، جس میں انہوں نے وہ فوٹیجز شیئر کری ہیں کہ کس طرح سے جماعت اسلامی کے کارکنان پر پولیس نے جو ہے وہ کارروائی کا آغاز کیا ہے، پولیس نے کریک ڈاؤن کا آغاز کیا ہے۔
हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी के कारकुनान डटे हुए हैं, वो नहीं घबराए और कारकुनान पुलिस का बिल्कुल मुकाबला करें। पुलिस जो है वो सिंध हुकूमत की मातहत है। हमारा ये जो एहतजाज है ये सिंध हुकूमत के खिलाफ, तो हम ना से किए जाने वाले लाठीचार्ज से घबराएंगे, ना ही हम किसी आंसू गैस की शेलिंग से घबराएंगे। हमारे कारकुनान जो हैं वो मुत्तहिद हैं और ये पकड़ धक्कड़ और गिरफ्तारियों से जमात इस्लामी ना पहले कभी घबराई है, ना जमात इस्लामी अब घबराएगी। इसके अलावा जो तर्जुमान जमात इस्लामी है उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि पुलिस की जानिब से मुसलसल हमारे कारकुनान पर शेलिंग की जा रही है और कारकुनान जो है वो सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने डटे हुए हैं और हमारे कई कारकुनान पुलिस के लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग और ये जो भगदड़ मची है इससे जख्मी भी हुए हैं। जमात इस्लामी के तर्जुमान ये भी क्लेम करते हैं कि कारकुनान हमारे पुरअज़म हैं और अपनी जगह मौजूद हैं, वो पुलिस की कार्रवाई से डर के नहीं भागे, ना ही वो किसी घबराहट का शिकार हैं। उनका कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं मुनीम जफर खान, वो कारकुनान से जो वहाँ पे जमा है उनसे खिताब करेंगे और जो मरकजी क़यादत का फैसला होगा उसके बाद वो कारकुनान को गाइड करेंगे, आगाह करेंगे और उस हिसाब से आइंदा के लाए अमल का ऐलान किया जाएगा। अगर मरकजी क़यादत कहेगी कि यहाँ धरना देकर बैठना है तो फिर वो धरना देकर बैठेंगे। अगर मरकज कुछ और बात तजवीज़ करेगी तो उस पर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन इसका देर के बाद होगा। अब क्योंकि शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद थे। आपने नाज़रीन को बताएं कि कराची में सिंध असेंबली जाने की कोशिश करने वाले जमात इस्लामी के कारकुनों पर पुलिस की शेलिंग की गई है और पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया है और इसके नतीजे में 10 से ज़ायद कारकुनान ज़ेर हिरासत हैं। हाफिज नईमुर रहमान का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बाइख्तियार शहरी हुकूमत कराची का हक शहरी अपना हक लेकर ही रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा है कि धरना रोकने की कोशिश सिंध हुकूमत की नाकामी और बौखलाहट का सबूत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा है कि पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है और कराची में पीपल्स पार्टी की फस्तायत पूरा मुल्क देख रहा है। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर यह बयान जारी किया गया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि पुरअमन शहरियों पर आंसू गैस की शेलिंग की गई है और धरना रोकने की कोशिश सिंध हुकूमत की नाकामी और बौखलाहट का सबूत है। जमात इस्लामी के वफ़द और पुलिस के दरमियान मुज़ाकरात अभी तक नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इबाद उस्मानी। इबाद, बताएगा जमात इस्लामी की जानिब से क्या अगला लाएमल होगा, इसका कोई ऐलान किया गया है? देखिए, अब तक के तो ऐलान नहीं किया गया है कि अगला लाहे अमल क्या होगा, लेकिन एहतजाज का जो एक सिलसिला था जमात इस्लामी की जानिब से वो जारी रखने का बिल्कुल जो है वो ऐलान किया गया है, क्योंकि सिंध असम्बली के बाहर जो ऐलान किया गया था 8 फरवरी को किया गया था और 8 फरवरी के इस ऐलान के बाद ये हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी के जो मेयर हैं और दीगर जो लीडरान हैं उनकी जानिब से काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था कि रोड बंद कर दिए जाते हैं, एहतजाज किया जाता है, एम्बुलेंसेस फंसती हैं और लोगों को काफ़ी दुश्वारी का सामना होता है, तो ये एहतजाज का सिलसिला इन जगहों पर नहीं होना चाहिए और काफ़ी तनकीद सियासी तौर पर जो है वो देखी गई थी कि की गई है। और यही देखा गया कि आज जब जमात इस्लामी के कारकुनान जो ऐलान करके इससे कबल आ रहे थे सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने के लिए पुरअमन तरीके से, जब वो यहाँ पर पहुँचे हैं करीब में ही, तो ये देखा गया कि जमात इस्लामी के कारकुनान को रोका गया और रोकने के बाद उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया और यही देखा गया कि जमात इस्लामी के कारकुनान की जानिब से शुरू में ही ये बदनज़मी देखी गई और यहाँ पर मुज़ाकरात जब नाकाम हुए तो पुलिस की जानिब से शेलिंग शुरू कर दी गई और उनकी गिरफ्तारी का अमल जो है वो अब तक जारी है। जमात इस्लामी के कारकुनान अब भी जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और पुलिस उनको सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने की जो है वो बिल्कुल इजाज़त नहीं दे रही है और इस वक्त जो है वो गिरफ्तारी का अमल इस वक्त जारी है। गिरफ्तारी का अमल जारी है, ठीक है। बात ये भी बताएगा कि पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? देखिए, पुलिस की जानिब से ये बताया जा रहा है कि ये जो इलाका है सिंध असम्बली का और इससे मुंसलिक जो इलाके हैं इस वक्त जो है वो यहाँ पर भारी नफरी मैं आपको दिखाता चलूँगा आ गई है और जो मुजाहिरीन हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए मजीद भी नफरी को यहाँ पर इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर कॉर्डन किया है और पुलिस की जानिब से यही बताया जा रहा है कि इस जगह पर ये रेड जोन होने की
वजह से यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही थी एहतजाज करने की, तो इस वजह से यहाँ पर एहतजाज ना किया जाए बल्कि एहतजाज को किसी और जगह पर मुंतकिल किया जाए। जमात इस्लामी की जानिब से मौक़िफ़ था कि जब इनको इत्तला दी गई थी इससे कबल ही कि हम यहाँ पर एहतजाज करेंगे तो फौरी तौर पर यहाँ पर सख्ती करके उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा और यहाँ पर एहतजाज क्यों नहीं किया जा रहा। जमात इस्लामी के जो लीडरान हैं उनकी जानिब से जो मौजूदा हुकूमत है उस पर काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया मौजूदा हुकूमत को, और यहाँ पर जो इंतज़ामिया है पुलिस ख़ास तौर पर उनको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है कि वो कारकुनान पर, निहत्ते कारकुनान पर वो जुल्म ढा रही है, उनको गिरफ़्तार कर रही है, शेलिंग और उनको जो है वो काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गिरफ़्तारी का अमल इस वक्त किया जा रहा है। इस वक्त भी यहाँ पर बहुत सारे जो जगह हैं वहाँ से ये रिपोर्ट आ रही हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान इस वक्त भी जमा हो रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए सिंध असम्बली के बाहर यहाँ पर मुनज़्ज़म तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, बात ये भी बताएगा कि इस वक्त जो इलाका है वो मैदान जंग बना हुआ है, तो क्या जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद कितनी है और क्या इन ज़ख्मियों में कोई पुलिस एहलकार भी शामिल है? देखें, एसएसपी जो साउथ है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि जो पुलिस के जवान हैं, गिरफ्तारी का अमल जब शुरू हुआ था तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। यहाँ पे जमात इस्लामी के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से जो है वो पथराव किए गए थे, जो शेल फायर किए जा रहे थे पुलिस की जानिब से वो उठाकर उनके ऊपर भी फेंके गए, तो मुतअद्दिद यहाँ पर पुलिस एहलकार जवान जो है वो ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इसी तरह हमने ये देखा कि जमात इस्लामी के कारकुनान जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई उनको भी जो है वो ज़ख्मी हालत में देखा गया। तो इस वक्त ये तो नहीं कहा जा सकता कि कितने ज़ख्मी हैं, लेकिन दोनों जानिब ये हमने देखा कि पुलिस के जवान भी ज़ख्मी हुए हैं, जमात इस्लामी के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं। और जो इब्तिदा में ये देखा गया था जब मस्जिद की मगरिब की नमाज के बाद जब जमात इस्लामी के कारकुनान जमा हुए थे और आगे बढ़ने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त से अब तक जो है वो दोनों जानिब झड़पें जारी हैं, गिरफ्तारी का अमल जारी है, लेकिन एहतजाज के लिए बज़िद है जमात इस्लामी के कारकुनान के वो सिंध असम्बली की जानिब बढ़ें। ठीक है, बात ये भी बताएगा कि ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी की क़यादत कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी और अपने आगे के लाएमल का ऐलान करेगी, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है अभी तक वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। देखें, इस वक्त जो है वो पुलिस की नफरी ही हम देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह का इंतज़ाम नहीं देख रहे हैं कि कोई क़यादत सियासी यहाँ पर आएगी और अपने लाए अमल का जो है वो ऐलान कर सकती है। लेकिन ये ज़रूर देखा जा रहा है कि जो दीगर लेवल पर जो बात हो रही है सियासी तौर पर कि जमात इस्लामी को एहतजाज करने दिया जाए, लेकिन जो पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है और मज़ीद ये हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ ज़िलों से भी यहाँ पर नफरी बुलाई गई है, उससे तो ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि यहाँ पर जमात इस्लामी की क़यादत आएगी और लाए अमल तय करेगी, क्योंकि नफरी पुलिस की यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच चुकी है और कुछ जगहों की जो है वो लाइट भी बंद कर दी गई है। हमने ये देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी यहाँ से गई हैं, एम्बुलेंसेस भी गई हैं और पुलिस की प्रिजनर वैन भी यहाँ से जो है वो आगे की जानिब गई है। और इलाके को अगर हम देखें तो पीछे पूरा अंधेरा हुआ है और यहाँ पुलिस की नफरी जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है जो गिरफ्तारी कर रही है और किसी तौर पर यहाँ किसी को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इससे बिल्कुल जाहिर नहीं होता कि जमात इस्लामी की क़यादत यहाँ आके कोई ऐलान अभी जो है वो कर सके। ठीक है, बात ये भी बताएगा कि सिंध असम्बली के इतराफ़ की इस वक्त क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि पुलिस हुकाम की जानिब से तो ऐसे कहा गया है कि किसी को भी सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। देखिए, जो आर्ट्स काउंसिल से सिंध असम्बली की जानिब जो ट्रैफिक आ रहा है इसको बिल्कुल खोला गया है, लेकिन जो कबूतर चौरंगी से एम.ए. जिना रोड जाने वाले जो रास्ते हैं उनको जो है वो इस वक्त बंद किया गया है। वहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। कहा जा रहा है कि वहाँ जमात इस्लामी के कारकुनान मुनज़्ज़म हो के एक दो बार आगे आए हैं और मज़ीद जो है वो मुनज़्ज़म होने के बाद जो है वो आगे की जानिब बढ़ रहे हैं, तो उन जगहों को तो बंद कर दिया गया है जो कबूतर चौरंगी या सिंध असम्बली के अतराफ़ को रास्ते जा रहे होते हैं, जबकि दीगर जो सड़कें हैं वो बिल्कुल इस वक्त खुली हुई हैं और वहाँ पर ट्रैफिक गामजन है। वहाँ पर ट्रैफिक गामजन है। ठीक है, ये भी बताइएगा कि अभी तक तो वहाँ मुज़ाकरात तक कोई नहीं पहुँचा है और जो बात है सिर्फ बयानात तक ही महदूद है। ये सिलसिला कब से जारी है?
देखें, ये सिलसिला हम देखें तो जमात इस्लामी की जानिब से जब से एहतजाज का सिलसिले शुरू किए गए हैं, यहाँ पर हमने देखा कि सियासी तौर पर तो थोड़ी गर्मा गर्मी हमें देखने में आई। जब शाहराह फैसल पे जमात इस्लामी ने जो है वो एहतजाज किया, उसके बाद ही हमने देखा कि सियासी तौर पर बयानात का सिलसिला जो है वो जारी रहा। और अब जब एहतजाज का वक्त जब यहाँ पर पहुँचा तो पुलिस की जानिब से या हम कहें कि हुकूमत की जानिब से ताकत का मुजाहरा किया गया और जमात इस्लामी को यहाँ पर एहतजाज करने से रोका गया, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है और इस सिलसिले को कितना वक्त लग सकेगा ये तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब तक कोई भी लाहे अमल सामने नहीं आ सका है, ना जमात इस्लामी की जानिब से ना हुकूमती सतह पर कि कोई बैठ के बात हो सके, कोई मुज़ाकरात हो सकें। तो कोई पॉजिटिव अभी तक खबर इस वक्त तक नहीं आ सकी है। ठीक है, कोई पॉजिटिव खबर अब तक सामने नहीं आ सकी है। बात ये भी बताएगा कि जब ये धरना देने आए तो क्या इनका प्लान था? सिर्फ एक दिन ही इसको जारी रखेंगे या मज़ीद भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा? जमात इस्लामी की जानिब से धरने के जो सिलसिले हैं सिंध असम्बली में, अगर हम माजी में देखें तो ये देखा गया कि काफ़ी तवील जो है वो धरना दिया गया था शहर के हुकूक के लिए और काफ़ी वादे भी किए गए थे। अब जमात इस्लामी का ये दावा है कि जो वादे किए गए, जो बातें की गई, उस पर अमल नहीं किया गया और शहर कायद को ये बदइंतज़ामी के बायस जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, जो लोगों की यहाँ पर जानें ज़ाया हुई, उसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पर आयद होती है। और उसके लिए जो एहतजाज का यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया गया, ये मुमकिन था कि ये धरने में तब्दील हो जाता और ये काफ़ी दिनों तक रहता। मुतालबात के हक में हद तक जब तक नहीं लिए जाते मुतालबात, ये यहाँ पर एहतजाज तब तक जारी रहता, लेकिन ये होने ही नहीं दिया गया अभी। तो इसका बिल्कुल असर नहीं बताया जा सकता कि जमात इस्लामी कब तक जो है वो एहतजाज यहाँ पर जारी रखती। ठीक है, बात ये भी बताएगा कि जो तमाम तर सूरत हाल बनी है इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जमात इस्लामी के कारकुन शेलिंग से बचने के लिए गलियों का भी उनकी जानिब से रुख किया जा रहा है और जो हालात है मज़ीद कशीदा हो चुके हैं। अभी तक तो ये देखा गया है कि मुज़ाकरात नाकाम है, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वाकई में कोई मुज़ाकरात की जानिब पेशरफ्त हो सकी है? देखिए, जमात इस्लामी की जानिब से मुज़ाकरात की जो पेशकश है वो बिल्कुल ये यहाँ पर नहीं देखी गई है, क्योंकि हम ये देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पर कि जो मुज़ाकरात पहले हुए वो नाकाम हुए। जमात इस्लामी का ये था मुतालबा कि हमें सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, उनको रोका गया। उसके बाद वो एहतजाज जो है वो करने के लिए आगे आए और जिसके बाद ये सारी जो है वो सूरत हाल देखने में आई। अगर हम देखें हुकूमती सतह पर क्या जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश की गई, अगर हुकूमती सतह पर हम देखें तो एहतजाज के बाद हुकूमत का ये पहला इकदाम देखा गया कि उन पर मुकदमा किया गया। उसके बाद जब इलेक्शन कमीशन के बाद जमात इस्लामी कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो वहाँ पर गिरफ्तारी की गई और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से हटाकर जो है वो थाने मुंतकिल किया गया। तो हुकूमती सतह पर तो मुज़ाकरात हमने नहीं देखे और जमात इस्लामी की जानिब से भी ये देखा गया कि वो हुकूक कराची के लिए जिसका वो दावा करती हैं कि उसके लिए एहतजाज वो करती रही हैं। और ये देखा गया कि एहतजाज 8 फरवरी को भी किया और आज असम्बली के बाहर ही एहतजाज का जब ऐलान किया गया तो ये देखने में आया कि हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकरात है वो नहीं किए गए। अलबत्ता कुछ पुलिस अफसरान अफसरान गए थे, उन्होंने रोका लेकिन वो नहीं माने, जिसके बाद ये ताकत का मुजाहरा ज़रूर हुकूमत की तरफ से देखा गया कि मुज़ाकरात के बजाय ताकत का मुजाहरा यहाँ पर किया गया और यहाँ पर कारकुनान पर तशद्दुद, जैसे जमात इस्लामी के लीडरान कहते हैं कि कारकुनान पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये ज़रूर देखने में आया कि हुकूमत की जानिब से यहाँ पर ताकत का मुजाहरा किया गया, मुज़ाकरात का रास्ता नहीं अख्तियार किया गया, यहाँ पर ना एहतजाज करने की दिया गया जमात इस्लामी को, बल्कि अब तक जो एहतजाजी मुजाहिरीन यहाँ पर